जीसस क्राइस्ट। तो यीशु अल मसीह ने उन कोड़ियों को साफ किया। जैसे आप पता ही है, मदर टेरेसा को देखें कि कैसे जजाम के मरीजों को, कोड़ के मरीजों को, बच्चों को उन्होंने पाला पोसा और उनको जवान किया, उनकी खिदमत की और उन जख्मों को साफ किया। तो एक दफा मुझे याद है, ये जो है ना, क्या उनका नाम है, क्रिकेटर जो है आपके, एक मजाहिया है, वो आते रहते हैं इसके कपिल शर्मा के शो में, क्या कहते हैं उसको, सिद्धू। हाँ जी। तो सिद्धू भाजी, उनका ये है कि मैं वो पैसे देने की गए थे एक दफा, उन्होंने को पैसे इकट्ठे किए। तो उन्होंने कहा कि जी ये मदर जी ये ले ले पैसे। उन्होंने कहा जी ये पुत्र सानू पैसे ना दे दूं, तू ही जाके लोगों की मदद करा कर इस तरह ही, सानू पैसे तेरी नहीं जरूरत हैगी, तेरे पैसे की जरूरत सानू नहीं हैगी। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹਕੂਕਲ ਆਬਾਦ, ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਹਕੂਕਲ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਲਾਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਵਿਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਸੀ ਮਾਂ ਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪੁੱਤ ਪਾਉਣਗੇ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਤਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਤਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਖਿਡਾਵਾਂਗੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਰੱਖਾਂ ਹਿੱਕ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਨ ਦਿਲ ਦਾ, ਹਾਂ ਰੱਖਾਂ ਹਿੱਕ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਨ ਦਿਲ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਖੁਮਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਤਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਗਿਆ ਅਖੀਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਏ, ਵੇਖੋ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਏ, ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਏ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਜਗਮਗ ਜਗਦੇ, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਜਗਮਗ ਜਗਦੇ, ਹੁਣੇ ਉਹ ਜਨੇ ਚਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਤਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਸੀ ਮਾਂ ਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। बहुत खूब, बहुत खूब जी डॉक्टर साहब, बहुत खूब। अच्छा, एक और आपकी किताब जो मैंने अभी देखी थी, कावे के रंग और हरफा दा परागा, महक दे फुल, इनमें से आपने सुना दी है। अब हरफा दा परागा ये बड़ी खूबसूरत है और बिल्कुल प्योरली पंजाबी जुबान है। हरफा, ਹਰਫ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਰਨੇ ਆ ਪਰਾਗਾ ਛੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਛੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਾ ਪਰਾਗਾ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਕਾਵੇ ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਪਰਾਗਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹਰਫਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ we are just using the three languages at the same time. We are using three languages. It's not bilingual, it's a trilingual. ਜੀ The ਜੀ program is going on trilingual. ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਕਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ।
हाँ जी, हाँ मेरे शुरू में इसी से मैं आगे आगे ढूंढ रही हूँ। जी। मैं एक लिखिया सी कविता दे उत्ते हाँ जी। कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। हम्म। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਮ ਹੱਥ ਦਿੰਦੀ, वाह। ਮੈਨੂੰ ਕਲਮ ਹੱਥ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਘੁੱਟ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੀ, वाह। ਘੁੱਟ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਲੈ ਚਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਲੈ ਚਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ, ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬੋਲ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਮਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। हम्म। ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬੋਲ, ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਾ, हम्म। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਾ, ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਸਾਗਰ, ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ, ਸਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वाकई। ਤੇ ਉਹੀ वाह। answer ਹੈ। ਤੇ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਭੁੱਲ, हम्म। ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ, वाह। ਅੰਬਰ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਬਰ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ, हम्म। ਵਰ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਵਰ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ, ਪੁੰਗਰ ਜਾਂਦੇ ਫੁੱਲ, ਪੁੰਗਰ ਜਾਂਦੇ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, जी। ਮਹਿਕ ਜਾਂਦੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਮਹਿਕ ਜਾਂਦੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੋ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, हम्म। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। हम्म। ਹਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੋ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। वाह वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, शायरी जो है, जैसे आपने अभी बात की दो लफ्जों की, जी इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी। जी आप किस इश्क में मुब्तला रही हैं? ये बड़ी, मैं ऑन इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्योंकि जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। थोड़ा सा मैं जरा थोड़ा सा लाइट मूड में, कि जिंदगी में चूंकि देखें, इसमें जब बात करते हैं इश्क की, तो इश्क मिजाजी तो वो है जो हम इंसानों से प्यार करते हैं। हमारा कोई महबूब होता है, हमारा एक फ्रेंड है, और उसके अलावा जो है फिर उसके बाद हम उससे जब हमें कोई ऐसे मसाइल होते हैं, या बन नहीं पड़ती, या मिलते नहीं हैं, या मिल नहीं सकते, तो फिर हम या तो छोड़ देते हैं या खुदा की तरफ आ जाते हैं। फिर वहां से हमारा जो सफर है वो इश्क हकीकी की तरफ शुरू हो जाता है। तो आप किस सफर में, आप किस इश्क में मुब्तला रही हैं? ये मैं जरा जो हमारे नाजरीन है उनके लिए मैं पूछ रहा हूँ। बहुत से लोग जो है ना मजाक भी करेंगे कि ये डॉक्टर साहब क्या सवाल पूछ रहे हैं। तो मैंने इसलिए सवाल पूछा है क्योंकि मैं जो है वो मैं बहुत दोनों चीजों को बहुत ज्यादा महसूस करता हूँ कि हम जब इंसानों से प्यार करते हैं तो हम खुदा से प्यार करते हैं बेसिकली, जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्योंकि खुदा ने इंसानों को पैदा किया है और हमें ये कहा गया है कि तुम एक दूसरे से प्यार करो, मोहब्बत करो, जैसे मैंने प्यार किया है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु अलैहि मसीह ने मोहब्बत का एक मिसाल कायम कर दी, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया तुम भी एक दूसरे से प्यार किया करो। ही लव्ड मी बिफोर आई लव्ड एनीवन एल्स। खुदा ने हमें पहले प्यार किया है, इससे पहले कि हम प्यार करते, खुदा ने प्यार किया हमें, और उसका नमूना क्या दिया है? जीसस क्राइस्ट। जी। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया है। हम्म। तो जैसा कि आप जानते हैं मैं शुरू से ही मतलब एक डॉक्टर होने के नाते समाज सेवा करती हूँ, तो मैं इंसानों से प्यार करती हूँ। इसका क्या रीजन है, मैं गॉड से, ऐसा नहीं कि गॉड से प्यार नहीं करती, लेकिन मैं नहीं नहीं, इंसानों से मैं इसलिए, ये नहीं कहा आपको, मैंने ये नहीं खुदारा, ये मैंने ये नहीं कहा कि आप खुदा से प्यार नहीं करती। मैंने तो ये सवाल पूछा है, ये सवाल आपके लिए तो है, लेकिन ये सवाल उन लोगों के लिए है जो ये जब ये बात करते हैं, ये पूछते हैं, ये सवाल ये पूछेंगे नहीं। तो मैंने ये जुर्रत करके सवाल किया है कि हमें जो है वो किस तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए।
देखिए, कुछ लोग जैसे इश्क मिजाजी करते हैं, कुछ हकीकी करते हैं, लेकिन मेरा शुरू से ही खुदा के साथ बहुत प्यार रहा है। शुरू शुरू से ही मैं खुदा शुरू को से बहुत, मुराद कब से शुरू से? शुरू से ही बचपन मतलब, से ही? हाँ, बचपन से मेरा खुदा से बहुत ज्यादा लगाव रहा है। उसके बाद शादी, देखो शादी हो गई तो नेचुरली है कि हम हस्बैंड से प्यार करेंगे। जी जी जी। ये जरूरी तो नहीं है, नेचुरल तो है ये, लेकिन ये सबके लिए जरूरी नहीं होता। हाँ, ये सबके एक एक होना तो चाहिए सबके लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ये ऐसा होता होता तो दुनिया में कोई डिवोर्स ना होता, लिए। क्योंकि हमारी जो तबीयतें हैं मुख्तलिफ तरह की हैं। वो हम एक दूसरे के साथ मिल तो लेते हैं 10 दिन के लिए, 10 साल के लिए, लेकिन कभी ना कभी वो फिर मसला बन जाता है। और फिर या तो वो साथ रहते हैं, उसी मुश्किल को साथ लिए रहते हैं, और अगर नहीं तो वो फिर लदा हो जाते हैं। जी उसमें फिर मुश्किलें आती हैं, फिर खुद को ही झेलना पड़ता है ना। जी जी। उसके लिए बहुत मुश्किलें आती हैं। तो इसलिए अच्छा होता है कि जहां तक हो एडजस्टमेंट की जाए, जहां तक हो। कंप्रोमाइज किया जाए, शादी का दूसरा नाम है कंप्रोमाइज है। शादी या का तो तो आपने मतलब पहले, जी जी जी। हम्म, कंप्रोमाइज है। तो फिर अगर हम दूसरे रास्ते पे चलते हैं तो वो गलत हो जाता है ना, समाज में भी गलत है और वैसे भी पर्सनली भी गलत है। तो पर्सनली भी फिर गलत है। उसी में आदमी डूबा रहेगा, कुछ करेगा ही नहीं, अपना फ्यूचर ही खराब कर लेगा। पास्ट भी खराब है उसका, तो फिर हम्म, फ्यूचर भी खराब करेगा। अगर प्रेजेंट प्रेजेंट में ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट, है ना, हमें क्या करना है ये सब सोच समझ के करना पड़ता सही सही, थैंक यू सो मच। वो चले, आपके बात मुझे समझ आ गई कि आपने हमेशा खुदा से प्यार किया है, और उसके बाद आपने जब शादी हो गई तो आपने आपने क्योंकि आप खुदा के साथ ज्यादा क्लोज थी। ये बड़ा बड़ा होता है कि आपकी फैमिली के साथ आपने पेरेंट्स से ये सीखा होता है, उस एनवायरनमेंट में जब रहती हैं। तो फिर हमें अपने कलमकार इंटरनेशनल से हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि अपने लोगों से प्यार, यानी कि खवातीन जो है वो अपने, बाइबल मुकद्दस में यही लिखा है कि जो औरतें हैं, बीवियां हैं, अपने शोहरों से प्यार करें, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें। और शोहरों के लिए भी ये कहा है कि अपनी बीवियों को एक नाजुक बर्तन या उनको प्यार करो, उनके साथ ऐसे ही है जैसे वो खुदावंद की तरफ से तोहफा दिया गया है। और हमेशा तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ, प्यार के साथ रहना जो है वो सीखें। इससे मुआशरा परवान अच्छा चढ़ता है। इससे जो हमारे जो बच्चों पर असर जो है वो अच्छा पड़ता है। अगर मियाँ बीवी दोनों अच्छे हैं, ठीक है, उनकी बातचीत खूबसूरत है, उनकी बातें अच्छी हैं, या वो अच्छे अखलाक से पेश आते हैं, गालियां नहीं देते एक दूसरे को, अच्छा सलूक करते हैं, इज्जत करते हैं एक दूसरे की, इज्जत जो बहुत जरूरी है, इज्जत। और यही रिश्ता होता है, बाकी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इज्जत का रिश्ता है कि आप, मैं डॉक्टर साहबा की इज्जत करता हूँ, इसलिए बस इज्जत करता हूं, देयर इज नो एनी अदर क्वेश्चन, व्हाई डू यू लव, व्हाई डू यू रिस्पेक्ट। तो ये बड़ा जरूरी है। हेलो, है। जी जी। आपके आपका वो चलेगी, तस्वीर चलेगी। तो हाँ जी। एनीवे, थैंक यू सो मच। आखिर में फिर एक दफा वही आपकी शायरी की तरफ आते हैं। हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को अपनी शायरी जरा सुना दीजिए, और जी अता मैं, कीजिए अपनी शायरी, ताकि हमारे सुनने वाले जो शोरा हजरात भी होंगे, बहुत से लोग और भी देखेंगे बाद में भी, तो हमें, हमारे साथ अभी ऑनलाइन भी कुछ लोग देख रहे हैं हमें। तो अपनी शायरी अता कीजिए, तरन्नम में या गाकर, मतलब गाकर हाँ, या वैसे ही। आप चाहें तो मैं एक गीत गा के सुनाती हूँ, मुझे बहुत। जरूर जरूर जरूर। चन्ना तेरी याद विच नैन कदों सोणगे, दुख जिन देते सानू, लुक रोने। चन्ना तेरी याद विच नैन कदों सोणगे, दुख जिन देते सानू, लुक लुक रोने। वाह वाह, बहुत अच्छा। रुत तारा बने, नैन भी नहीं बोलते, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਕੇ ਪਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ, ਅਥਰੂ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣੇ, ਨੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਕੇ
पल नहीं खलोन दे, वाह वाह, दूरियां मिटा के कदों सामने खलोन गे, चन्ना तेरी याद विच नैन कदों सोनगे। दुनिया दा डर इना चंगा नहीं ओ टोलना, चंगा नहीं ओ हुंदा छाड़ रावां विच रोलना। माफ खतावां करी चंगा मंदा बोलना, नहीं ओ चंगा हुंदा बातां बीतियां वाह फरोलना। वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਮਾਹੀ ਕਦੋਂ ਫੇਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਚੰਨਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨੈਣ ਕਦੋਂ ਸੌਣਗੇ। बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। फिर बातें करेंगे और फिर नए पंजाबी मुशायरे में आपका जी स्वागत करेंगे, खुशामदीद करेंगे। थैंक यू सो मच। आज हम आपकी बातें, आपकी शायरी जो है वो हमारे जितने व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, उन तक पहुंची हैं। और ये प्रोग्राम जो है वो आप कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से देख रहे थे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और इसी तरह जुड़े रहिए। और हम सब, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हमारी जो वो बातें हैं, या हमारा जो मुआशरा है, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, वो दूसरों तक पहुंचे और हमारे माशरे में ये अदबी लोग पैदा हों। और अदब जो कि बेसिकली एक मुस्बत एक्टिविटी है, अच्छी एक्टिविटी है। इससे अच्छा माशरा परवान चढ़ता है, इसमें एथिक्स जो है वो बढ़ता है, अखलाकियत अखलाकियत अखलाकी कदरें जो है वो, अखलाकी अकदार पैदा होती है, जिससे लोग जो है वो अपने आप को भी और दूसरों को भी अच्छा समझते हैं। मतलब अच्छे, मतलब ये है कि अच्छा अखलाक हुस्ना से लोगों को तब्दील कर सकते हैं, तलवारों से नहीं, डंडों से नहीं, बल्कि प्यार से, मोहब्बत से। और दूसरों के दर्द को समझना। डॉक्टर साहब का मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा तो ओहदा यही है कि आप डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और आप दूसरों के दर्द को समझती हैं, दूसरों के दर्द को समझती हैं, और मुफ्त बहुत लंबा लंबा सफर करती हैं, उनको उनको बताती हैं, वक्त अपना कुर्बान करती हैं। मैं जाया नहीं कहता, जब हम किसी के लिए काम करते हैं, हम वक्त को कुर्बान करते हैं, वक्त जाया नहीं करते। हम जब किसी के लिए कोई भी काम करते हैं, तो वी जस्ट सेक्रीफाइस आवर लाइफ एंड वी सेक्रीफाइस आवर टाइम। इट इज नॉट अ वेस्टेड टाइम, it will never waste. We are not wasting our time when we help others, when we guide others, और स्पेशली जब हम अदब की खिदमत भी करते हैं, तो हम अपने माशरे को, अपने उस स्लोब को, उस क्या कहते हैं उसको, मैं पंजाबी का लफ्ज बोलने लगा था, वसनीब को, वसनेब, वैसे क्या कहते हैं उसको, वसनेब ही कहते हैं, वसेब को, सॉरी, वसेब को हम जिंदा रखते हैं, अपने माशरे को जिंदा रखते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी शायरी, आपकी बातें वाकई बहुत ही ज्यादा काबिल कद्र हैं। और खुदावंद आपको इसी तरह से हमारे लिए और इस अदब के लिए भी इस्तेमाल करे, चूंकि अदब से जो है वो बहुत सी कौमें तब्दील होती हैं, और यही एक पहलू है जिससे हम दूसरों को अच्छा पैगाम पहुंचा सकते हैं, इसी वजह से पहुंचा सकते हैं, शायरी जो है। थैंक यू सो मच। ये प्रोग्राम आप कलमकार